Welcome to the fourth lecture of Romantic Poetry in year 2107. In this lecture, we learn an ode of William Wordsworth, our named line written a few miles above Tintern away on visiting the banks of the Wee during a tour July 13, 1798. In this ode, the writer William Wordsworth remember or highlight or give an idea and also talk about his revisit. Again, he is visiting a place that is called Bank of the V, a tour July 13, 1798. Before that, he is also visited over here. Now he is again visiting this place. So he is writing his memories about that, his imagination. That is the place. That is a place where he is visited in turn away. ये है टिंटर्न अवे जो दरिया के बिल्कुल किनारे है, पीछे पहाड़ हैं, आसपास बाग हैं, नेचर फुल तो वहाँ पे अवेलेबल है और उसे एंजॉय किया जा सकता है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ उसे एंजॉय करने के लिए इस जगह दूसरे दफा आया है। This poem we will learn something about the poem. So style and structure. The poem is written tightly structured blank verse. इसकी poem जो blank verse में है और comprises verse paragraphs rather than stanzas. इसमें stanza यूज नहीं हुआ बल्कि वर्स के पैराग्राफ यूज हुए हैं। ये अनराइम्ड है और मोस्टली जो है वो एम्बिक पेंटामीटर, यानी पहला अनराइम, दूसरा राइम, फिर अनराइम, फिर राइम, 10 meter or each meter having two syllables. One is first is unrhymed, second is rhyme. Categorizing the poem is difficult as it contains elements of all of the old. The dramatic monologue and the conversation poem in the second edition of Lyrical Ballads was noted. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि पोइम के अंदर डायलॉग को लिखा जाता है, लेकिन डायलॉग मोनोलॉग एक ही पर्सन की बातें होती हैं। So I have not ventured to call this poem an ode, but it was written with the hope that in the transitions and the impassioned music of the versification would be found the principal requisite of that species of composition. तो वो खुद कहता है कि ये जो है मैं लिख रहा हूँ ये असल में ओड नहीं है, लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन मैं इसे ओड के तौर पे ही लिखा हूँ, इसलिए इसे ओड का ही नहीं लिख रहा हूँ। एट द बिगिनिंग इट मे वेल बी dubbed an 18th century landscape poem, but it is commonly agreed that the best designation would be a conversation poem, यानी से conversation poem ही कहना बेहतर है। About Tintern Abbey, no poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me to remember than this. ऐसा भी मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई है, टिंटर्न अबे अ प्लेस। तो वो कह रहा है कि मैंने बहुत सी पोइम्स लिखी हैं, लेकिन कोई भी पोइम जो है वो इतनी अच्छे जगह बैठ के नहीं लिखी गई जितनी अच्छी जगह बैठ के ये लिखी गई है। जितने नेचर के करीब बैठ के, जितने प्लेजेंट प्लेस पे बैठ के मैं ये लिखी है, वैसे कहीं और नहीं थी। I began it upon leaving Tintern after crossing a V and concluded it just as I was entering Bristol in the evening. कहता मैंने जब वहां से चला हूँ तब लिखना शुरू किया, जब ब्रिस्टॉल पहुंचा तब ये कंप्लीट हो चुकी थी। After a ramble of 4 or 5 days with my sister, not a line of it was altered and not any part of it written down till I reached Bristol. It was published almost immediately after in the little volume of which so much has been said in these notes. So, the complete title that Wordsworth gave it was Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey. On revisiting the banks of the Bee during a tour July 13, 1798, ये इसका पूरा नेम है। इसे वैसे ओड ऑन द Tintern Abbey भी कहा जाता है, लेकिन इसका कंप्लीट नाम है। It was published as the last poem of the lyrical ballads. At the age of 23, poet visited
visited the Abbey alone. In 1798, he visited with his sister Dorothy, referred as friend throughout. तो डॉर्सी को एज अ फ्रेंड अपनी पोइम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले उसने इस पे इलाके का विजिट किया था, अब दोबारा जब विजिट किया दूसरे विजिट पे उसने ये पोइम लिखी। पोइम इज रिफ्लेक्शन ऑफ पोइट्स विजिट ऑन ऑफ 1793। पहला विजिट उसने 1793 में किया था, जो उसने अकेले में किया था। द वे इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, रिवर वी इज डिस्क्राइब्ड पैशनेटली। तो वही का जो रिवर है वो डिस्क्राइब किया गया। इट इज कम्प्लेक्स पोएम एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ थीम एट द सेम टाइम इन विच memory, morality, faith, nature, friendship and familial love are represented over here and implies a more intellectual and philosophical relation with nature। इस पोएम में हम राइटर का रिलेशन देखते हैं किससे, नेचर से, लेकिन एक कॉमन एक आम तरीके का रिलेशन नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल है। Structure of the poem is complex. There is no rhyme, no regular division of stanzas, written in blank verse or iambic pentameter, and poetic devices that are used in this poem are repetitions of sounds and words. So we are starting reading the poem. In the every slide we learn there are some lines and there is their analysis। कि उनका एनालिसिस रिटर्न में मैंने साथ डाल दिया है कि ऊपर जो है उसका पोइम है और नीचे उस पोइम का एनालिसिस है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a sweet inland murmur। वो कह रहा है कि repetition is used in emphasize his separation and sense of delight of being back। वो मेमोराइज कर रहा है कि 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और मुझे 5 साल 5 winters 5 long winters गुजर चुके हैं। And again I hear these waters rolling from their mountain springs with a sweet inland murmur। अभी मुझे वो जो इनकी inland murmur की जो sweet थी, वाटर की गिरने की जो आवाज़ थी, वो बहुत अच्छी लग रही है। Once again do I behold these Once again do I behold these steep and lofty cliffs. Do I behold these steep and lofty cliffs that on a weird, secluded scene impress thoughts of more deep circulation and connect the landscape with the height of the sky। तो कह रहा है कि पहली चीज़ जो फैसिनेट कर रही है वो पानी की आवाज़ है, पानी का मरमर है। और सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे फैसिनेट कर रही है, जो मुझे नेचर की बहुत अच्छी लग रही है, वो कि लॉफ्टी क्लिफ्स, आसमान को छूती हुई पहाड़ियाँ। दैट नो विल्ड शेड्यूल सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप स्पेकुलेशन। तो उनको देख के मेरी जो इमेजिनेशन है वो मेरी डेप्थ में चली जाती है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और लैंडस्केप जमीन को आसमान के साथ मिला देती है। द डे इज कम व्हेन आई अगेन repose here under this dark sycamore and view these plots of cottage around these orchard tufts which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mid groves and copses। वो कह रहे हैं वंस अगेन मैं यहाँ पे आया हूँ और इस सीजन में आया हूँ जब अंडर द डार्क सेकमोर एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, कि मेरे आसपास हल्का सा अंधेरा है कॉटेज के ग्राउंड में और ऑर्चिड, और जो यहाँ पे फल हैं वो भी कच्चे हैं, अनराइप फ्रूट्स हैं, और वो ग्रीन है और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और जो पहाड़ों तक और गारों तक जा रही है। इस इन अल्फाज के ज़रिए वो जो है ना रिवर वी जो है उसका एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो उनका जो था ना कॉटेज के प्लॉट्स जो थे वो जा कहाँ पे टच हो रहे थे, दरिया को। Once again I see these rows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral farms green to the very door। तो कह रहा है कि मुझे नजर आ रहे हैं हेज रोज, फसलों की लाइन है, फूलों की लाइन है, झाड़ियों की लाइन है, लेकिन इन्हें लाइनें नहीं कहा जा सकता, हार्डली हेज रोज, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन विल्ड।
इससे ये भी कहा सकता है कि छोटी छोटी लाइनें हैं जो जड़ी बूटियों की उग गई और वो जंगली बन गई। दिस पास्टोरल फार्म ग्रीन टू द एवरी डोर, और ये जो है ना हर तरफ हमें नजर आ रही हैं। तो ये जो हेज रोज है ये आमतौर पर कहा जाता है शीप फार्म्स को, कि भेड़ों के लिए जो उन्होंने फार्मिंग की है वहाँ पे क्या होता है घास उगा दी जाती है, लेकिन घास बहुत अच्छे तरीके से नहीं उगाई जाती है, ऐसे रफ से अंदाज से उगा दी जाती है और भेड़ें उसे खाती हैं और अगली चारागाह की तरफ चलती जाती हैं। And drafts of smoke stand up in silence from among the trees, with some uncertain notice, as might seem, of vagrant travelers in the houseless woods, or of some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone. कह रहा है कौन कौन सी चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक दरिया देख रहा हूँ, एक आसपास जो मेरे चरागाहें बनी है वो देख रहा हूँ, मैं अपने जो टिंटर्न अबे है इसके आसपास जो बागीचे बने हुए उन्हें देख रहा हूँ, दरिया को देख रहा हूँ, और क्या रेप्स ऑफ स्मोक और कुछ धुएं के मरगोले उड़ रहे हैं उनको देख रहा हूँ। वो साइलेंस में दरख्तों से ऊपर मुझे नजर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ कोई वर्गेंट ट्रेवलर्स इन हाउसलेस वुड्स, कि वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो घर बेघर लोग जो हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, या फिर कोई चरवाहा है जो वहाँ पे है और वो आग जला के अपने अकेलेपन को दूर कर रहा है। These beauteous form, though a long absence, have not been to me as in a landscape to a blind man's eye. और ये ब्यूटीज फॉर्म है ना, वो दो लॉन्ग एब्सेंस, मैं 5 साल के बाद यहाँ दोबारा आया हूँ, 5 साल में एबसेंट रहा हूँ, हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन आई। इसके बावजूद ब्लाइंड मैन आई क्या होता है, वो देख ही नहीं सकता। कहता है कि मैंने ब्लाइंड मैन आईज नहीं दी, यानी मैं इसको आंखें बंद करके अक्सर देखता रहता था कि मैं नेचर के इतने करीब हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ों को अपनी अंदरूनी आय इमेजिनेशन से देखता रहा हूँ। बट ऑफ्ट इन लॉनली रूम्स एंड मिड द din of towns and cities I have owed to them in hours of weariness, sensations which fled in the blood and felt along the heart। कह रहा है कि जब मैं शहर में अकेला कमरे में होता हूँ या अपने टाउन या सिटी में होता हूँ और मैं वेरीनेस अकेला बैठा होता हूँ, मैं अपने स्वीट सेंसेशन इमेजिनेशन में जो मेरे ब्लड का हिस्सा है, जो मेरे दिल के करीब है, उनके अंदर मैं इन चीज़ों को फील करता हूँ, उनको रिस्टोर करता हूँ। ये जो मेरी इमेजिनेशन है उसके ज़रिए इनको मैं रिमेम्बर करता रहता हूँ। मैं ये भी फील करता रहता हूँ ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, यानी मेरे ऐसे प्लेजर आते हैं जो रिमेम्बर नहीं, सच perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kind and of love। तो तमाम चीज़ें जैसे याद रहती हैं वैसे मुझे वो भी याद रहती हैं। Nor less I trust to them I may have owed another gift। Nor less I trust, अभी मुझे ट्रस्ट है उतना ही, उससे कम ट्रस्ट नहीं है। To them I may have owed another gift, उनके लिए मेरे पास एक और गिफ्ट भी है। aspect more sublime, एक ऐसी चीज का जो इससे भी ज्यादा अहम है, जो इससे भी ज्यादा अजीम है। द ब्लेस्ड मूड, वो क्या है? ब्लेस्ड मूड। ब्लेस्ड मूड नेमत पर शुक्रगुजारी का जो मूड होता है उसे कहते हैं ब्लेस्ड मूड। इन विच द burden of the mystery, in which the heavy and the very weight of all this unintelligible word is lightened, जिसकी वजह से तमाम की तमाम जो आसपास चीजें क्या है, लाइटन, जली हुई हैं, वो क्या है, रोशनी पैदा कर रही हैं। अनइंटेलिजिबल डिसअपॉइंटेबल, कि जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं वहां जाके आपको ब्लेस्ड मूड जो चीज देती है वो आपकी इमेजिनेशन है। दैट सन एंड ब्लेस्ड मूड, और जो ब्लेस्ड मूड होता है इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, हमारी अफेक्शन हमें लीड करती हैं। ब्लेस्ड मूड में हमारी मटीरियलिस्टिक वर्ड नहीं हमें लीड करती, कौन लीड करता है? अफेक्शन लीड करती हैं। until the breath of his corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul। तो हम क्या हो जाते हैं? laid asleep in body and become a living soul, हम लिविंग सोल बन जाते हैं। जब हम मटीरियलिस्टिक वर्ड की वजह से ओवर बर्डन होकर डिसअपॉइंट होते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है ना नेचर से, वो क्या करता है, हमें दोबारा जो है वो इनर आए, अंदरूनी आंख के जरिए हमें
हमारी सोल को, हमारे बॉडी को वो अवेकन कर देता है। While with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. I made quiet मीन कि हम अपने आसपास जो चीज़ें नजर आई हैं उनसे अपनी आइज को बंद कर लें, उनको ना देखें। जो हमारे इर्द गिर्द है उनसे क्या करें, आइज बंद कर लें। यानी जो मटीरियलिस्टिक वे से हम देख रहे हैं उससे आइज बंद कर लें, और जो हम अपने अनमटीरियलिस्टिक वे से देखते हैं उसकी तरफ आ जाएं, जो मिस्टिक है हमारे पास। एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और अपने जो इमेजिनेशन की पावर है उसको यूज करें। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हमें चीज़ों की लाइफ के अंदर नजर आएगा। स्पिरिचुअलिटी हम देखेंगे फिर। Yet oh, how often in darkness and amid the many shapes of joyless delight, when the fretful stir, unprofitable, and the favor of the world have hung upon the beatings of my heart. एंड और जब दुनिया में आसपास अजीबोगरीब शोर हो रहा होता है, फ्रिटफुल स्टिर होता है, अनप्रॉफिटेबल होता है, एंड फेवर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया को पाने का एक क्या होता है, मटेरियलिस्टिक वजूद होता है कि हम दुनिया को हासिल कर लें। उस टाइम भी जो है ना, हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न्ड ऑफ दी, ओ सल्वन बाय बी द wanderer through and woods, how often has my spirit turned to thee। ये जो है ना, सल्विन भी कॉल्ड इट अ स्पिरिट, ये जो दरिया है ना ये भी एक स्पिरिट है। और जब ये स्पिरिट दरख्तों से होके गुजरती है तो वो मुझे क्या करती है, मुझे भी एक स्पिरिट में चेंज कर देती है। And now, with gleams of half-extinguished thought, with many recognitions dim and faint, and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again। कि इन तमाम की वजूहत की वजह से क्या होता है, तो पिक्चर पिक्चर जो है, वो जो इमेजिनेशन है, वो जो मेमोरी है, दोबारा रिवाइव हो रही है, दोबारा सामने आ जाती है। While here I stand not only with the sense of present pleasure, but with pleasing thoughts that in his moment there is life, food and future years। कहता मैं यहाँ यही नहीं खड़ा कि ये जो प्लेजेंट जो है प्रेजेंट में सिर्फ मुझे ये प्लीज करेंगी, ये चीज़ें मुझे सिर्फ प्लेजेंट में प्रेजेंट में प्लीज नहीं करेंगी। ये थॉट जो मेरी लाइफ और मेरे फ्यूचर के सालों का हिस्सा होगा, यही चीज़ मेरी खुराक होगी। And so I dare to hope to change, no doubt, from what I was when first I came among these hills, when like a ray I bounded over the mountains by the sides of the deep rivers and the lonely streams, whenever nature led। वो फिर अपनी पुरानी जो यादें उनको याद करा। रोई मीन्स डीप, यानी वो जो गहरी थी, सोचें वो इतनी गहरी हैं कि मैं उनके बारे में ना भी सोचूं तो वो ताज़ा ही रहती हैं। बातें होती हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। बात चीज़ों से हमारा इतना प्यार होता है, इतनी अफेक्शन होती है कि हमें उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो हर टाइम हमारे माइंड पे छाई रहती हैं। तो इसी की बात कर रहा, लॉन्ली स्ट्रीम्स व्हेन एवर नेचर लेट। जब भी नेचर मेरे माइंड पे लेट करती है तो क्या होता है, मुझे लॉन्ली स्ट्रीम याद आते हैं, डीप रिवर याद आते हैं, उसकी साइडें याद आती हैं। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग that he dreads than one who sought the thing he loved। करेंगे मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग समथिंग दैट ही ड्रीड्स। बात का इंसान कोई नीचे डराती भी है, जिन चीज़ों से इंसान मोहब्बत करता है उन्हीं के बातों से खौफ भी होता है। फॉर नेचर देन द कॉर्सर प्लेयर ऑफ माई बॉइश डेज, कि मैं अपने वो जो नौजवानी, जब मैं लड़का था उन दिनों को, जो मेरे डेज के बिहेवियर था, जो मेरा उन दिनों की प्लेजेंट चीज़ें थी, एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स ऑल गॉन बाय टू मी वाज ऑल इन ऑल, वो तमाम की तमाम चीज़ें बेहतरीन थी। यानी ऑल इन ऑल अ पैशन एंड एन एपिटाइट फिलिंग अप बोथ हिज इमोशनल फिजिकल डिजायर। तो मेरी इमोशनल फिजिकल डिजायर्स थी जो मुझे उन दिनों चाहिए होती थी, वो सारा कुछ नहीं थी, उनके अलावा जो मुझे मेरा माइंड देता वो सारा कुछ थी। आई कैन नॉट पेंट what then I was। The sounding cataract haunted me like a passion. The tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite।
तो कह रहा है कि इन द पास्ट आई कैन नॉट पेंट, मैं इन चीज़ों को पेंट नहीं कर सकता, लेकिन जब पहला दौर था तब मेरा पैशन, मेरी हर चीज़ इन्हीं पहाड़ों के साथ, इन्हीं के साथ होती थी। मेरी बाल लोगों को इश्तिहा होती है ना खाने पीने की, वो कहता मेरी एपिटाइट जो थी वो नेचुरल एलिमेंट थी, अ फीलिंग एंड अ लव, that was my feeling and love that had no need of a remoter charm by thought supplied nor any interest unborrowed from the eye। फिर कह रहा है कि इमोशनली अट्रैक्ट जो नेचर मुझे करती है ना, वो कोई चीज़ नहीं करती। और इनके साथ जो अट्रैक्शन है, इनके साथ जो रिलेशन है, वो बहुत डीपर लेवल पे है थॉट के लिहाज से। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयज आर नो नो मोर एंड ऑल इट्स बिजी रैप्टर्स। कह रहा जो पास्ट की फीलिंग थी ना, जो उस दौर की फीलिंग थी, वो मेरे साथ नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। जो अब से 5 साल पहले की फीलिंग थी ना, वो अब मेरे साथ नहीं है। नॉर फॉर दिस फेंट आई नॉर mourn nor murmur others gift have followed for such loss I would believe abundant recompense। वो कह रहा है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा कंपनसेशन ले रहा हूँ। कह रहा है कि मेरा ओल्ड रिलेशन जो था वो अगर ख़त्म हो गया नेचर से, लेकिन उस जैसा रिलेशन मैं अब नहीं फील कर रहा। तो मैं भी शहरी ज़िंदगी का थोड़ा सा आदी हो गया, फॉर आई हैड लर्न, क्योंकि मैं शहरी ज़िंदगी में आ गया, मैंने पढ़ लिया है टू टू ऑन नेचर नॉट एज इन द of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, nor harsh nor grating thought of ample power to chasten and subdue। अब वो कह रहा है कि अब मेरा रिलेशनशिप जो यंग में था ना, वो अनमेच्योर था। अब मेरा रिलेशनशिप जो नेचर से वो क्या हो गया, मेच्योर हो गया। और मेरे जो रिलेशन है वो मेच्योर ऐसे हो गए, और नेचर से भी है और मैन काइंड से भी है। जो कह रहा है कि मेरा जो इनके साथ रिलेशन है वो क्या है, वो टाइप का हो गया। और द स्टिल एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी द नॉर हार्श नॉर ग्रेथिंग, कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्श है, ना वो इरिटेटिंग है, ना वो मुझे इरिटेट कर रहा है, ना वो मुझे हार्श लग रहा है। थॉट ऑफ एम्पल पावर ऑफ चेस्टन, और जो चीज़ सब व्यू है, जो मैनकाइंड और उसमें जो काम रहना है, अपने आप को पुरस्कून करना है, वो मैंने सीख लिया है। यानी मैं नेचर से दूर रह के, इंसानों के साथ रह के अब कुछ ना कुछ रहना सीख चुका हूँ। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of getting suns and the round ocean and the living air and the blue sky and in the mind of a man। अब वहाँ इन लाइन्स में वर्ड जो है शोइंग हिज पैंथिज्म, जो वो कहता है ना, गॉड इज इन द एवरीथिंग, कि हर चीज़ में गॉड है, हर चीज़ में अल्लाह है, उसी चीज़ को बयान कर रहा है। आई फेल्ट प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय, हर चीज़ में जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ना नेचर का अल्लाह के साथ, वो मुझे नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो जो स्पिरिचुअल थिंग है इनके अंदर, वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, कि वो हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, हर टाइम मौजूद है। इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन, वो सेटिंग सन में भी है, एंड द राउंड ओशियन में भी है, लिविंग एयर में भी है, ब्लू स्काई में भी है, और माइंड ऑफ द मैन में भी है। इन तमाम चीज़ों में क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। मोशन एंड स्पिरिट दैट impels all things, thinking things, all objects of all thoughts, and rolling through all things। So guys, this spirit is everywhere, surrounding us, filling us, binding us, and the universe together, it connects everything। तो यही चीज़ें जो हर चीज़ को क्या करें, कनेक्ट कर रही हैं। Therefore I am still a lover। इसलिए ये चीज़ें जो नेचर जो है, हर चीज़ में अल्लाह है, तो नेचर में भी अल्लाह है। जब नेचर में भी अल्लाह है, तो ये हम सबको जोड़ नहीं है। जो चीज़ें हमें जोड़ नहीं है, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। लवर ऑफ द मेडोज एंड द वुड्स, इसलिए मैं अभी तक लव करता हूँ जैसे मेडोज से एंड वुड से, माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दीज दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ। जो कुछ हमें इस ग्रीन अर्थ से मिलता है, उस तमाम चीज़ें मैं क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ऑफ ऑल द माइटी वुड, ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई एंड एयर, और जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, बेशक सुनने वाली हो या देखने वाली हो, बोथ व्हाट दे हैव half create and what perceive,
दो ये क्रिएट करते हैं, दो ये परसीव करते हैं। वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस। इसके ज़रिए हम अगर लैंग्वेज ऑफ द सेंस को समझते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, उनकी डेप्थ तक जा सकते हैं। द एंकर of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart, the soul of all my moral being। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, वो अपने रिलेशनशिप को फिर नेचर से जो his thoughtless relationship with nature is now over and he is now concisely in love with nature as he knows its faults। उसे पता नेचर में कितनी पास है, इसलिए वो इससे लव करता है। नोट perchance, if I were not thus thought, would I the more suffer my genial spirits to decay। वो फिर यहाँ पे shows his wonders about the what happened in himself to recognize nature's blessing। जब वो नेचर की ब्लेसिंग को समझता है तो कितना हैरान और परेशान हो जाता है, कितना खुश होता है। For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear, my dear। अब आप सोचेंगे यहाँ उसने डेयरेस्ट फ्रेंड किसको कहा है, जो मैं चीज आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। फॉर द आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ द फ्योर रिवर, तुम अभी मेरे साथ हो यहाँ रिवर के बैंक पे हो। दो माई डेयरेस्ट फ्रेंड, हो मेरे करीबी दोस्त। इट इज ही स्पीकिंग अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है, डॉर्थी जो उसके साथ थी। डॉर्थी इज इंट्रोड्यूस्ड हियर एज अ फ्रेंड, and in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasures in the shooting of thy wild eyes। Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, my dear, dear sister। अगर जो मैं अपने यूथ के अंदर, अपने नौजवानी के अंदर जैसे इन चीज़ों को मैं प्लेजर इनसे फील करता था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पहले मैं अकेला आया था, अकेला बैठ के मैंने बहुत एंजॉय किया था, अब तुम साथ हो। एंड दिस प्रेयर आई मेड knowing that nature never did betray the heart that loved her। सम ऑफ माय फेवरेट लाइंस ऑफ वर्ड्सवर्थ कि अगर आप नेचर से मोहब्बत करोगे तो नेचर आपको कभी तबाह नहीं करेगी। सो यू हैव टू लव द नेचर। इट इज हर प्रिविलेज फॉर though all the years of this our life lead from joy to joy। तो नेचर जो है वो चाहती है कि जो उसके साथ रहता है वो जॉय ही करता रहे। वो पर्सोनिफाइड एज अ गाइड, तो वो नेचर उसको गाइड करती है जो इससे लव करता है। For she can so inform the wind that is within us, so impress with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि नेचर हैविंग डिफरेंट roles। Sometimes it teaches, sometimes it helps us as a nurse, and sometimes it shows his arts of beauty and lofty things। The neither evil tongue, rash judgment, nor the sneers of selfish men, nor greetings where no kindness is, nor all the dreary intercourse of daily life shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith, that all which we behold is full of blessing। पर अगर ज़िंदगी में हम जितना भी मसरूफ़ हो जाएं, जितने भी सेल्फफुल हो जाएं, जितनी जजमेंटल हो जाएं, जितने भी इवल टंग ले लें, इसके बावजूद जो नेचर से मेरा रिलेशन है वो कभी भी मैं इससे दूर नहीं हो सकता। Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, and let the misty mountain winds be free to blow against thee। इसलिए मैं कहता हूँ, oh my Wordsworth's love for his sister is showing his love for his sister and saying that तुम भी इस चीज़ को फील करोगे और तुम भी देखोगे ये चीज़ें जिंदगी में बहुत अहम है। And in after years when these weird ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be a mansion for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies। He is saying to his sister, you will see, you will listen these things, you will observe these things after going to your home। तुम्हें ये चीज़ याद आएंगी जो तुम अभी देख रही हो। तुम्हें नेचर से अगर तुम लव करती हो ना, तो तुम्हें ये तमाम चीज़ें क्या है, तुम्हारे घर में जाके तंग करेंगे। और देन if solitude or fear or pain or grief, when you feeling some solitude, some fear, some pain or grief should be thy portion,
तो फिर इनको अपना पोर्शन बना लेना। इन ये जो अभी हम जॉयफुल या प्लेजर फील कर रहे हैं विद वर्ड healing thoughts of tender joy wilt thou remember me and these my exhaustion, nor perchance if I should be where I no more can hear thy voice, nor catch from thy veiled eyes these gleams of past existence, wilt thou then forget that on the banks of this delightful stream we stood together? कहता है कि अगर तुम इन चीज़ों को याद नहीं रख सकते, अगर तुम नेचर से लव नहीं करती, तो तुम भूल जाओ कभी तुम मेरे साथ इस दरिया पे आई थी। एंड दैट आई सो लॉन्ग आई वांट वर्शिप ऑफ नेचर, आई वर्शिपर ऑफ नेचर, कहना मैं नेचर की इबादत करता हूँ हिदर कैम अनवेयर्ड इन दैट सर्विस रादर से with warmer love, oh, with far deeper zeal of holier love। तो मेरा लव जो है इसके साथ क्या है, बहुत हॉली है। तो मैं इसके साथ फुल जीस डीप थॉट के साथ यहाँ पे मैं आया हूँ और उससे मैं साथ लेके जाना चाहता हूँ। नॉर विल दाउ देन forget that after many wandering, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake। अरे ये जो मेमोरेबल सीन मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए हासिल करने की एक जगह है। यहाँ पे मुझे जो प्रीवियस मेमोरी थी ना, जो पहले वाली चीज़ें थी ना, जब मैं यहाँ पे अकेला आया था, अब डॉल्ची भी उसका हिस्सा बन गई है। यानी जो मेमोरी यहाँ मैं बना रहा हूँ उनके अंदर मेरी सिस्टर भी एक हिस्सा है। दैट्स एंड ऑफ दिस पोएम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम themes of this poem. This old poems explore the impact of passing time on his relationship with nature, his previous time with nature, and इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि वो स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी पहले से चेंज हो चुका है 5 सालों में। ये आप भी ऑब्जर्व कर लें, आज की डेट में लिख लें कि अब आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, अब जो आपकी इंटेलेक्चुअल, हालांकि हम समझ रहे हैं हमारी ये बहुत आउट क्लास है, लेकिन अब से 5 साल बाद ये इससे बहुत ज़्यादा डीपर और बेहतरीन हो जाएगी। वर्ड्सवर्थ डीपिंग रिलेशनशिप विद नेचर इज पैंथीज्म, वो इसी चीज को अपने पैंथीज्म के साथ रिला रहा है। व्हाट इज पैंथीज्म? आइडिया ऑफ डिविनिटी ऑफ नेचर, नेचर इज डिवाइन एंड एवरीथिंग थियोस गॉड। तो जो पैंथीज्म है उनके ख्याल में हर चीज ही गॉड होता है, कोई एक इंसान हो, हैवान हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, दरिया हो, हर चीज में। आयरिश राइटर जॉन थॉलैंड फर्स्ट यूज द टर्म इन 1705। स्ट्रिक्टली पैंथीज्म इज नॉट theism. Theism और pantheism बहुत फर्क है। It does not believe in the transcendent or personal God who is the creature but in one universe. Pantheism believes that we find truth, solace and spiritual fulfillment when we establish connection with one universe। ये जो एथियस्ट है वो खुदा को नहीं मानते। थीइज्म जो है वो खुदा को नहीं मानते। ये जो पैंथीइज्म है, थीइज्म जो है वो कहते हैं एक खुदा है जिसने तमाम दुनिया को पैदा किया। पैंथीइज्म कहते हैं जो तमाम चीजें मिलके जो दुनिया में है वो एक खुदा बनती है। Paul modern writer, uses the idea in his works, wrote of his philosophy in the all-in-one and interconnected। ये all in one and interconnected ये वही आइडिया है जो वर्ड्सवर्थ एज अ रिलीजियस लेता था कि हर चीज में खुदा है। हैरिसन इन अ सेंस Pantheism holds that there is no divinity other than the universe। Universe खुद ही divinity है। Different from Islamic view, the Sufi or mystic sees only the presence of God in every particle of nature। यानी हम हर पर्टिकुलर में समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं तमाम चीज़ें कनेक्टिविटी और नेचर है। Islamic pantheism with Ibn Arabi, born in the year 560 AH 1165 AD। So that's end of today's lecture. Inshallah, we'll meet in the next lecture. Thanks for